किस हाल च ने, जिंदा ने या नहीं जिंदा, ये अल्लाह बेहतर जानदा उन्हां नाल की होया की नहीं। और मेरी भी अल्लाह ताला इज्जत रखे। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके हजरवाल में, जहां पर एक वाक़या पेश आता है। 3 बच्चियां, जिनमें 2 बहनें ईमान और मुस्कान और एक उनकी कज़न अरीबा जो है, वो इकट्ठी जाती हैं ट्यूशन पढ़ने घर से। और जुमे के रोज़ 24 नवंबर को ये वाक़या पेश आता है। घर से जाती हैं ट्यूशन के लिए और वापस नहीं आती हैं। वाक़या किस तरह पेश आता है और असल में बच्चियां जो है वो कहाँ लापता हो जाती हैं, घर वापस नहीं आती हैं। 6 से 7 बजे का टाइम हो जाता है। घर वाले जब पता करने जाते हैं ट्यूशन वालों की तरफ, तो पता ये चलता है कि बच्चियां तो वक्त से पहले ही उनको छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन वो घर नहीं आती हैं। कहाँ जाती हैं वो बच्चियां? उनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया या उनको किसी ने अगवा कर लिया, ट्रैप कर लिया, किस तरह हुआ ये सब, या वालिदैन की नज़र में क्या शक व शुबहात है, सब इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। ये बताएं कि आपकी जो बच्चियां हैं ईमान और मुस्कान, उनकी उम्रें कितनी हैं और वो कौन सी जमातों में पढ़ती हैं? ईमान 13 साल की है, 7वीं क्लास च पढ़दी है। अरीबा 12 साल की है, वो भी 7वीं क्लास च पढ़दी है। जेह्ड़ी मुस्कान है ये हैगी 12 साल दी है ते ये भी या 12 साल दी है, 5वीं क्लास च पढ़दी। अरीबा ते मुस्कान दी उम्र इक्को जिन्नी है, मतलब ते ईमान वड्डी उन्हां ते नाल। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ईमान ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਰੀਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੀਬਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ? ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜੁਮੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਈ ਸੀ? ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ। 4 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ, ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਚਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਉਸ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰਾਂ 4 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ नहीं, सानू हाले तिकरा कोई पता भी नहीं चलिया कि बच्चियां कित्थे ने। बात करते हैं इनके वालिद साहब से, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, ये बताएं कि आप जो आपकी बच्चियां हैं जिस दिन लापता हुई हैं, आपने उनको कहाँ कहाँ तलाश किया? और पुलिस थाना जो है हंजरवाल, चूँकि आपके घर के करीब ही है, तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई, FIR दर्ज करवाई, हो गई थी उसी दिन? जी, वो ऐसा होगा 7 बजे हमें पता चला कि जब मेरी बेगम उधर से वापस आई कि वो तो बच्चियाँ तो 5 बजे उन्होंने छुट्टी दी थी रोशनी में। उनसे पूछा, जाके बात की है कि उन्होंने कहा भाई रोशनी में हमने उनको छुट्टी दे दी कि कोई काम, उनको छुट्टी वाला दिन था, स्कूल का काम नहीं था। तो हमने कहा कि रोशनी अब चली जाएंगे, ये कौन सा दूर है। तो वो हमें वो 7 बजे जाके पता चला कि वो घर पे नहीं आई हैं।
7 ਜਦੋਂ बजे के ਲੈਣ ਗਿਆ मैंने ਫਿਰ पता ਚੱਲਿਆ कि जब बच्चे बेगम आते वापस नहीं आई हैं। ना तो मैं फ़िक्रमंद हो गया कि किधर गई हैं। फिर आपने क्या किया? फिर मैं उनके मामू के घर, उनके चाचू के घर, उसकी नानों के घर, उसकी खालाओं के घर, सभी के घरों में पता किया है। जब मुझे पता चला कि अब ये मुझे नहीं मिल रही हैं, तो फिर मैं गया हूँ 15 पे। उसका जो मामू है ना अरीबा का, वो मेरी भतीजिया मेरे पास ही रहती है। तो उसके मामू को मैंने इत्तला किया कि ये ना हो कि वो मुझे बाद में बोलें कि हम इतना बड़ा हादसा हो गया, आपने मुझे बताया ही नहीं है। तो मैंने बच्चों को भेजा उधर, वो उसी टाइम वो आ गए हैं। इनके मामू अरीबा के वो भी आ गए हैं। वो भी हमारे साथ एफर्ट करते रहे हैं। पुलिस वाले उसी टाइम 15 पे फिर कॉल की है, तो पुलिस वाले आ गए हैं। उन्होंने हमारे साथ इनको ढूंढते रहे हैं। कभी सीसीटीवी कैमरे को खुलवाया, कभी उसको खुलवाया है। वो हमारे साथ लग रहे हैं। तकरीबन 1:30 के या 2 बजे हम थाने गए हैं। देख दाख के हमें कोई खास खबर नहीं मिली। बस आती नज़र आ रही हैं, जाती नज़र आ रही हैं। कैमरे में सिर्फ एक कैमरे में नजर आई हैं। एक में आ रही हैं, तो फिर जब ट्यूशन गई हैं तब भी नज़र आ रही हैं। जब ट्यूशन से वापस आई हैं तब भी नज़र आ रही हैं। फिर थोड़े से आगे जाके फिर वापस आई हैं नानों के घर की तरफ, फिर उससे आगे नहीं नज़र आ रही। तो तकरीबन रात का 1:30 बज गया, 2 बज गए हैं। तो थाने हम गए हैं। अरीबा का मामू भी था, मैं भी था। तो उन्होंने एफआईआर कटवाई है। एफआईआर मैंने पढ़ी नहीं है। उन्होंने मुझे कहा एसओच साहब ने कि ये 2 की तरफ आपकी तरफ से होगी, 1 की मामू की तरफ हो जाएगी। मैं तो एफआईआर जो उन्होंने दर्ज किया उसमें उनकी उम्र, नाम सब कुछ ठीक दर्ज वो तो किया था? मैंने सर उनको बताया था कि मेरी बच्ची को, जो छोटी बच्ची है 9-10 साल उसकी उम्र होगी, बड़ी की 12-13 साल होगी। लेकिन जब मैंने एफआईआर अगले दिन जाके देखी है तो उसमें तो उन्होंने बहुत फ़र्क डाल दिया है। वो बेटी का जो एक, पहले तो बात तो ये है कि उनकी 3 में से 2 की हुई है, एक की एफआईआर नहीं हुई। 1 की हुई नहीं है। तो जो हुई भी है तो वो उसकी भी उम्र सही जो है नहीं ना आई, वो गलत लिख वो दी भी गई सही है। नहीं हुई। उसकी उम्र जो है ना वो 12 से 13 है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ 16 से 17। तो आपने तो पुलिस मैंने वालों फिर में पुलिस वालों को हाँ। जाके बताया ना कि ये भाई ये आपने गलती कर दी है। हम्म। तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन में ये ठीक हो जाएगी। उन्होंने वो दोबारा मेरा से बयान लेके फिर उसके ऊपर मेरा साइन अंगूठा करवा लिया कि ये तीसरी बच्ची भी आपकी ऐड हो गई है। अब वो उम्रों का उनका भी ये एक मिल जाएगी, सारी मिल जाएंगी। तो तो अब मैंने उन्होंने भी ठीक कर दिया उसको? वो अरीबा का मामू था तो उसने देखी है, मैंने तो देखी भी नहीं है अभी तक भी। मैंने उनके पास वो उन्होंने मुझे कहा अभी ठीक है, अब ये तीनों बच्चियाँ ऐड हो गई हैं। तो हमें इसने इनसे हमें गर्ज नहीं है, हमें तो हमारी बच्चियाँ मिलनी चाहिए थी। पुलिस वाले आपके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं? पुलिस वाले हमारे साथ तामन तो कर रहे हैं। हमारे पास आजी साहब आमर साहब हैं, मियाँ आमर साहब डीएसपी, उन्होंने मुझे खुद बुलाया। मैं गया, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी है। लेकिन उसके बावजूद मुझे तो तसल्ली मेरे दिल को तब होगी ना जब मेरी बच्चियां मुझे मिलेंगी। अभी तक तो वो एफर्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपका काम हमारे तक पहुंचा हुआ है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये उनकी जो है ना वो अपनी कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो रिजल्ट का तब ही तो पता आज चलेगा ना। 3 रोज हो गए हैं बच्चियों 3 का नहीं, कोई आज शाम को 4 रोज हो चार, गए। आज चौथा रोज है। हो 3 दिन, गई, हाँ आज 4 हो गई चौथा है कि दिन है 3 और में अभी 4 तक हो उनका कोई सुराग नहीं लगा। और पुलिस आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर एफर्ट कर रही है? जी देखिए जी, जितने उनके पास वसाइल होंगे वो अपने दौड़ा रहे होंगे। अगर मेरी मेरी तो गुजारिश है आईजी पंजाब साहब से और वज़ीर आला साहब से कि प्लीज़ आप उनको और वसाइल दें। जो वो कर सकते हैं उनसे ज़्यादा उनको वसाइल दें, ताकि वो मेरी अच्छी तरह से मदद कर सकें, मेरी बच्चियों को ढूँढने में मेरी मदद कर सकें, या मुझे ढूँढ के दे दें। अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे और मेरी भी अल्लाह ताला इज़्ज़त रखे। मैं तो बहुत परेशान हूँ। नाजरीन, इनके घर की रौनक जो है वो चले गई है। इस वक्त इनके घर में क़यामत का जो है वो समा है। माँ भी रो रो के इनके तो आंसू ही खुश्क हो गए हैं। क्या कह सकते हैं कि बच्चियाँ जो है वो कहाँ चली गई, किस तरफ उनको कौन ले गया, क्या इनको किसी के ऊपर कोई शक शुबा नहीं है, कोई इनकी दुश्मनी अदावत नहीं है किसी से। लेकिन ये चीज़ समझ से बाहर है कि कहाँ चली गई बच्चियाँ। मुझे ये बताएं कि आपकी बच्चियाँ कभी किसी अपनी सहेली की तरफ नहीं, कहीं नहीं, मेरी कभी गई बच्चियाँ थी? कहीं भी नहीं जाती हैं, सीधे घर में आती हैं। घर से वो बाहर नहीं निकलती हैं। ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, स्कूल पढ़ने जाती हैं। स्कूल पढ़ने जब जाती हैं तो बच्चे उनको छोड़ के आते हैं, वापस वो खुद ही आ जाती हैं। लेकिन सुबह का टाइम होता है इसलिए उनको छोड़ के आते हैं बच्चे स्कूल में, उनको अंदर जब वो चले जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। अभी आप क्या हमारे अपील करना चाहेंगे? हमारा मकसद आपकी आवाज़ बुलंद करना, इसीलिए हम यहाँ पर आए कि देखिए, आपकी मुकम्मल तौर से हेल्प की जाए। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे जो आला हुकाम हैं उनसे? मैं अल्लाह काम से यही अपील करता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब साहब से
आईजी पंजाब साहब से कि मेरी मदद करें, मेरे वसाइल नहीं हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, आपके पास बहुत वसाइल हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी मुझे बच्चियाँ मेरी ढूँढ के दे सकते हैं। तो जो बच्ची अरीबा थी, उनकी दादी हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं ना? जब जो मेरी वो भतीजी है ना, वो मेरे पास ही रह रही है, ये उनकी दादी हैं, ये उनकी दादी हैं, उसका वालिद और उसकी वालिदा दोनों ही फ़ौत हो चुके हैं। वो छोटी नाज़रीन, सी थी जब वो फ़ौत हो गए, वालिद जो है ना वो अभी 3 से 4 साल हुए होंगे उनको, वो अब फ़ौत हुए हैं, जो वालिदा हैं वो बचपन में ही फ़ौत हो गई, तो दादी ने ही उसको पाला हुआ पोसा हुआ है, ये मेरे पास ही हैं। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और हमारा मकसद था कि इनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनकी आवाज़ को मज़ीद आगे पहुँचाया जाए और इनकी बच्चियाँ जो वो जल्द से जल्द इन तक पहुँच सकें। और इस वक्त हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप इस प्रोग्राम को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।